فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 774 چیف سیکرٹری تلنگانہ شانتی کماری نے اس مہینے کی 17 تاریخ سے ہندوستان کے معزز صدر کے ریاست کے آنے والے دورے کے ضمن میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ شانتی کماری نے مطلع کیا ہے کہ صدر اس ماہ کی 17 تا 21 تاریخ تک شہر کے غیر ملکی دورے کے حصے کے طور پر حیدرآباد میں ہوں گے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں اور مناسب طریقے سے وسیع انتظامات کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہندوستان کے صدر کے دورے کو تسلی بخش انداز میں مؤثر طریقے سے نمٹا جائے۔ محکمہ جنگلات کے افسران سے کہا گیا ہے کہ وہ سانپ پکڑنے والوں کو تعینات کریں اور سانپوں کو پکڑنے کا کام پہلے سے مکمل کریں۔ شانتی کماری نے ہدایت دی کہ سانپ پکڑنے والی ٹیم کو راشٹرپتی نیلائم میں 24 گھنٹے تعینات رکھا جائے۔ اسی طرح GHMC کے ساتھ تال میل کے ساتھ RP نیلائم میں اور اس کے آس پاس بندروں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے خصوصی ٹیموں کو تعینات کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح GHMC کو ہدایت دی گئی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ شہد کی مکھیوں کو پکڑنے کا کام پہلے سے ہی اچھی طرح سے کیا جائے۔ چیف سیکرٹری نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ راشٹرپتی نیلائم کے ساتھ تال میل کے ساتھ انتظامات کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ جاری کردہ سبھی کاموں کو پہلے سے اچھی طرح سے حل کیا جائے اور محکمہ پولیس کو چاہیے کہ وہ مناسب حفاظتی انتظامات، مناسب ٹریفک اور بندوبست پلان کرے۔ تلنگانہ حکومت کے پرجا پالنا کے تحت اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے سروے سے متعلق بھینسا شہر کے عوام کو محمد جابر احمد، نائب صدر نشین بلدیہ و متحدہ ضلع عادل آباد مجلسی صدر نے اہم اطلاع دیتے ہوئے سروے کے دوران عہدیداروں کا تعاون کرنے کی خواہش کی ہے۔ دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے بھینسا میونسپلٹی میں جو پرجا پالانے کا نام پہ پرسوں اپلیکیشن سے لیے ہیں، اس میں ہاؤسنگ کے واسطے، اندرما ہاؤسنگ کے واسطے بھینسے میں 12,711 درخواستیں آئے ہمارے بھینسا میونسپلٹی میں۔ بھینسا میونسپلٹی میں 12,711 اپلیکیشنس آئے سور، اس میں ہاؤسنگ جس کو گھر نہیں ہے بنانے کے واسطے، اس کا سروے کے واسطے جو ہے نا ابھی ہم اسٹارٹ کر رہی گورنمنٹ۔ اس کا جو ہے نا سروے رپورٹ آنے کے بعد ایلیجیبل، ناٹ ایلیجیبل، کون اس میں حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، اس کی لسٹ الگ بنی ہے۔ جیسا کہ کس کو بھی آیا لکھا دیے، ملتا نہیں ملتا بول کے، جس کو گھر بھی ہے انہیں لکھا دیے، جس کو نہیں ہے انہیں بھی لکھا دیے۔ تو اس کا سروے ابھی ہو رہا۔ سروے میں 4-5 چیزیں جو اہم ہیں وہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی اسکیم پہلے جو اندرما ہاؤسنگ کی ہے یا نہ تو ہاؤسنگ کی ہے، اس میں آپ لیے کیا، لیے یا نہیں لیے کرک لکھانا، نہیں تو بعد میں کیا ہوتا اگر آپ نہیں لیے بول کے بولے میں نا، تو اس میں کیا ہے آپ کو جیسا کمپیوٹر کلک کریں گے اس میں آپ کا نام آئے گا، آپ کے رشتہ دار کا نام آئے گا، وہ آٹومیٹک کٹ ہو جائے گا۔ تو ذاتی مکان ہے یا کرائے کا مکان ہے، یہ آپ سے پوچھیں گے کس میں، سروے میں۔ ذاتی مکان ہے تو پھر کون سے ٹائپ میں ہے، کویلی کا ہے، ٹین شٹ کا ہے یا نہ تو کیسا ہے، وہ بھی آپ کو لکھانا پڑے گا۔ کرائے کا مکان ہے تو کرائے کا مکان میں وہ بھی لکھانا پڑا، کرائے کا مکان ہے بول کے۔ اس کے بعد کرائے کا ہے تو RCC کا ہے یا ٹین شٹ کا ہے، یہ بھی اس میں لکھانا، کرائے کا مکان والا بھی لکھانا اس میں۔ پھر ٹائپ آف وال، دیواریں کون سی ہے اس کے، ٹین مارے والے ہے یا نہ تو برک کے اینٹ کا ہے، نہ تو ایسا، یہ بھی لکھانا پڑے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC میں منعقدہ عوامی خطابی پروگرام میں ہیڈ آفس اور GHMC سے کل 118 شکایت موصول ہوئی ہیں۔ ایڈیشنل کمشنرز نے GHMC ہیڈ آفس میں منعقدہ عوامی خطاب پروگرام میں حصہ لیا اور مختلف مسائل کے حل کے لیے آنے والے لوگوں سے درخواستیں وصول کی۔ پروگرام میں پرجوانی فون کے ذریعے 2 درخواستیں موصول ہوئی ہیں تو انہیں حل کے لیے متعلقہ محکموں کو بھیج دیا گیا۔ GHMC ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ عوامی خطاب کے پروگرام میں 52 درخواستیں موصول ہوئی
जिन में से 22 दरख्वास्तें टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से, 12 FA सेक्शन से, 8 टैक्स सेक्शन से, 3 इंजीनियरिंग से, 2 वेटरनरी सेक्शन, सफाई विजिलेंस से मौसूल हुई और निफाज और 1 स्पोर्ट्स सेक्शन से। JJMC के तहत 6 जोनों में कुल 66 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें कुकटपल्ली जोन में 36, एलबी नगर में 10, सिकंदराबाद में 8, श्रीलिंगमपल्ली जोन में 2, खैरताबाद जोन में 4 और चार मीनार जोन में 6 शिकायत मौसूल हुई। एडिशनल कमिश्नर सेवक कुमार नायडू, नलिनी, पद्मावती, गीता, राधिका, सत्यनारायण, रघु प्रसाद, सुभद्रा देवी, CCP श्रीनिवास, एडिशनल CCP गंगाधर और दीगर इस प्रोग्राम में मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दहली इंतखाबात 2025 में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने दहली फसादात के मुलजिम वो आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद हलके से पार्टी का उम्मीदवार बनाने का भी ऐलान किया है। ताहिर हुसैन फिलहाल जेल में कैद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि MCD काउंसलर ताहिर हुसैन ने AIMIM में शमूलियत इख्तियार की और आने वाले दहली असम्बली इंतखाबात में मुस्तफाबाद हलके से वो पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उनके अहले खाना और हामियों ने मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मजलिस ने दहली असम्बली इंतखाबात में 70 सीटों के मिनजुमला तकरीबन 10 सीटों पर मुकाबला करने का मंसूबा बना रही। इम्कान है कि आइंदा साल फरवरी में दहली असम्बली इंतखाबात होंगे। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन को दहली फसादात के बाद अहम मुलजिम जाहिर करते हुए मीडिया में खूब तशहीर की गई थी। ताहम हाल ही में ताहिर हुसैन को दहली हाई कोर्ट से राहत मिली। कोर्ट ने दहली फसादात के सिलसिले में हुसैन के खिलाफ दर्ज FIR को मुस्तरद कर दिया था। FIR 27 फरवरी 2020 को दर्ज की गई थी, जो एक इमारत की पहली मंजिल पर हंगामाराई और तोड़फोड़ के इल्जामात से मुतल्लिक है। अदालत ने नोट किया है कि हुसैन पहले ही इसी वाक़े से मुतल्लिक एक और मुकदमे में इल्जामात का सामना कर रहे। तेलंगाना असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस सिलसिले में असेंबली की लॉबी में इंतबाही बोर्ड लगाए गए हैं। इस मसले पर अपोजिशन ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि अपोजिशन के एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। कबल अज़े तस्वीर और वीडियोस पर कोई पाबंदी नहीं थी, ताहम अब नए ज़ाब्ते लाए गए हैं। अपोजिशन खासतौर पर BRS हुकूमत के जानिब से नाफिज किए गए नए क़वानीन पर नाराज है। इसका कहना है कि जमहूरी हुकूमत होने का दावा करने वाली कांग्रेस हुकूमत गैर जमहूरी और आमिराना पॉलिसियों पर अमल पेरा है। BRS ने इल्जाम लगाया कि कानून साज असेंबली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस पर पाबंदी हमें कानून साज असेंबली के अंदर और बाहर खामोश करने की कोशिश है। स्कूल को छुट्टियां मिलती हैं तो तलबा खुशी से सरशार हो जाते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने तलबा को खुशखबरी देते हुए क्रिसमस के मौके पर 3 दिनों की तातीलात का ऐलान किया है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के तमाम अजला में मुसलसल 3 दिन यानी कि मंगल, चारशुमा और जुमेरात 24 ता 26 दिसंबर तातीलात देने का ऐलान किया गया है। 24 दिसंबर को क्रिसमस की शाम, 25 तारीख को क्रिसमस डे और 26 तारीख को बॉक्सिंग डे के मौके पर स्कूलों को तातिल का ऐलान किया गया है। कबल से तेलंगाना हुकूमत ने 2023 में क्रिसमस की तकरीबात के लिए 5 दिन की तातीलात का ऐलान किया था, ताहम इस बार हुकूमत ने 3 दिन की छुट्टियां देने का फैसला किया है। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा का देहांत हो गया है। उनकी उम्र 92 साल थी। वो कुछ अरसे से खराबी सेहत से मुतासर थे। सुबह बेंगलुरु के सदाशिव नगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। 5 दहाइयों से ज्यादा का तवील सियासी तजुर्बा रखने वाले कृष्णा ने मरकजी और रियासती सियासत में कुलीदी किरदार अदा किया है। उनके दौरे हुकूमत में बेंगलुरु को दुनिया के सामने हिंदुस्तान की सिलिकॉन वैली के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था। उनके इंतकाल पर मोअज़्ज़ज़ शख्सियत ने शदीद रंज गम का इजहार किया है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर दहली को बदहाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आपके लीडर मनीष सिसोदिया ने हार के डर से अपनी सीट बदलकर जंगपुरा से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन उन्हें यहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक मेयर और कांग्रेस के सीनियर लीडर फरहाद सूरी ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के लोगों से 10 साल तक झूठे वादे करके इलाके को बदहाली के दहाने पर पहुंचा दिया। उनका ख्याल था कि सीटें
सीटें बदलने से लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जंगपुरा के मौजूदा एमएलए ने भी इलाके में कोई काम नहीं किया है। जंगपुरा असेंबली की सड़कों की हालत खराब है और कई मुकामात पर गटर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा। सूरी ने कहा है कि पार्टी की आला क़यादत अपनी निशस्तों से भाग रही और अपनी कोताहियों को छुपाने की कोशिश कर रही। आम आदमी पार्टी निशस्तें बदलकर अपनी नाकामियों और नाकारपन को छुपा नहीं सकती। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर हर रोज सुबह उठकर झूठ बोलना शुरू करते हैं और पूरे दिन इस झूठ को अलग अलग लीडर फैलाते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग सब कुछ समझते हैं। लोग उनके मकरों व फरेब का शिकार नहीं होने वाले। महाराष्ट्र में मुंबई की एक मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस के 13 मुल्जिमान को 16 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच जो हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात कर रही, इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें मुबैना मरकजी शूटर शिव कुमार गौतम भी शामिल है। पुलिस ने तमाम 26 मुल्जिमान के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट की सख्त दफात की दरख्वास्त की और दरमियान सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा मगरबी में अपने दफ्तर से निकलते वक्त 3 अफराद ने गोली मार दी थी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया था। लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी की सदारत में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें हुकूमत को घेरने के लिए तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में ज़ेर बहस मसाइल के हवाले से हुकूमत पर दबाव बनाने की हिकमत अमली पर गहराई से तबादला ख्याल किया गया, जिसमें मुख्तलिफ लीडरों ने अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के बाद राहुल गांधी की क़ियादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के मकर द्वार की तरफ मार्च किया और हुकूमत से बदउनवानी को शय देने और पार्लियामेंट में मनमानी न करने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान कई लीडरों ने अपने हाथों में बैनर भी उठा रखे थे। मार्च के बाद तमाम अरकान पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए ऐवान की तरफ रवाना हुए। उत्तर प्रदेश में एक और मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह फतेहपुर के सदर बाजार में वाक़ तकरीबन 200 साल पुरानी तारीखी नूरी जामे मस्जिद के खिलाफ रोड डिवाइडिंग के नाम पर बुलडोजर कार्रवाई करके अक़बी हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामिया ने बताया कि फतेहपुर जिले में हाईवे की वेंडिंग का काम जारी है। इस सिलसिले में तजावुजात को हटाया जा रहा और ADM अविनाश त्रिपाठी और ASP विजय शंकर मिश्रा की मौजूदगी में तजावुजात को बुलडोज के जरिए हटाया गया। बुलडोजर कार्रवाई के मौके पर PAC समेत पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया था। हुकाम ने बताया कि मस्जिद कमेटी को पहले ही नोटिस दिया गया था। सुबह मस्जिद के अक़बी हिस्से को बुलडोजर से मुनहदिम किया गया। नूरी जामे मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद नूरी ने कहा कि इंतजामिया की नोटिस के खिलाफ पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में करी दायर की गई थी, जिसकी समाअत 13 दिसंबर को होनी है, लेकिन इंतजामिया ने अदालत में समाअत से पहले ही मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जज की जानिब से VHP के एक प्रोग्राम में इंतहाई मुतनाज़ व नफरत अंगेज तकरीर करने के मामले में अज खुद नोटिस लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने कट्टर पसंद हिंदू तंजीम VHP के प्रोग्राम में तकरीर करते हुए यकसा सिविल कोड की तायद में कहा था कि मुल्क अक्सरियत की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ व नफरत अंगेज रिमार्क्स भी किए। जस्टिस यादव ने प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कानूनी सेल के जरिए मुनक़दा एक प्रोग्राम में यकसा सिविल कोड की आईनी जरूरत पर एक लेक्चर देते हुए मुतनाज़ तबसरे किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की तरफ से दी गई तकरीर की रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से तफसीलात तलब की हैं। जस्टिस यादव के रिमार्क्स ने सियासी हंगामा बर्पा कर दिया है, क्योंकि अपोजिशन जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की। एक सरकारी बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की तकरीर के रिपोर्ट्स का नोटिस लिया। हाई कोर्ट से तफसीलात तलब की गई हैं। मामला ज़ेर गौर और समाअत है। VHP के प्रोग्राम में तकरीर के दौरान हाई कोर्ट के जज ने कहा, मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये हिंदुस्तान है। ये मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। ये कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज होते हुए ये कह रहे हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।